मालविया कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुई एनुअल साइंस एग्जीबिशन। स्टूडेंट्स ने प्रस्तुत किए विभिन्न तरह के मॉडल। मालविया कॉन्वेंट स्कूल में एनुअल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन के अंतर्गत स्टूडेंट्स ने मोशन सेंसर, फ्लड अलार्म, स्वचालित वर्षा सेंसर, पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर, वेबसाइट, कंप्यूटर गेम्स, परमाणु संरचना, दूरबीन, ग्रहण, बीज अंकुरण, फसल उत्पादन आदि का एक कामकाजी मॉडल सहित विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा, राज्य महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, वार्ड 125 पार्षद रामप्रसाद शर्मा, वार्ड 127 पार्षद जय श्री गर्ग, वार्ड 131 पार्षद गोविंद सिंह छीपा, समाज सेवी सुमित काबरा, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर विमल सरदाना, शिक्षाविद C.K. शाह, अनिल बंसल, पंकज काबरा उपस्थित रहे। मालविया कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर सन्नी कपूर ने सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया तथा एग्जीबिशन में आकर बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रिंसिपल श्वेतिका कपूर ने साइंस एग्जीबिशन को सफल बनाने के लिए सभी स्कूल स्टाफ व स्कूल विद्यार्थियों के प्रयासों की जमकर सराहना की। Animal kingdom, different children are in different animals. They have come dressed up as different animals. Starting is from the tribes. Then here comes the duck. The duck lives in pond. They are expressing the ducks live in pond. Then comes the kennel, the dog. The child is dressed up as dog and he is sitting inside the kennel. Here comes the giraffe. They will explain that the giraffe lives in jungle. Here comes the zebra. Zebra, stand up. These are two zebras. Two children dressed up as zebra. These are elephants. They will express that they are dressed up as elephants. This is the monkey, naughty monkey. They climb and jump from tree to tree. These are the honeybees. They suck nectar from the flowers. Here comes the king of the jungle, lion. Lion, how does you say roar, isn't it? Peacock, stand up peacock. Here is the peacock. It dances when it rains. And she is the parrot. Stand up cow. How do you say? How do you say? Moo. How do you say? Moo. Yes. And here is the horse. The horse lives in stable. Then comes the cute little kitten. Kitten, stand up. Stand up, kitten. And say mew mew. Say mew mew. Good morning, sir. This is a working model of space shuttle. This space shuttle carries a large parts of space into space to build an international space station. This carries 7 astronauts at a time. To press this button, sir. Press this button. Yes, sir. This and then press this button to lift off. And then press this lift off. Morning, myself Riva Chaudhary. I am from class 8. I am presenting a small scale periscope. So it is mostly used in submarines to see the enemy approaching or to see what is on the surface of the water. So its working principle is very simple. From when a light ray enters from this hole, I have placed 2 mirrors here at 45-degree angle. So when the light or we can say an incident ray is reflected from this mirror, it goes to the second mirror and then as an incident ray, and then it gets reflected again. So and then it enters into our eyes. So sir, I am Deepika Deep from class 11th. It is the model of DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. लोग कहते हैं कि हमारी कुछ आदतें हैं वो हमारे पेरेंट्स पे गई हैं, तो वो कैसे गई हैं, किसकी वजह से गई हैं? वो डीएनए की वजह से गई हैं। डीएनए कंटेंट्स फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है जो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। A very good morning. This is Anushka Dhingra from class 11 science. So this is my own innovation which I have made thinking about the children. तो क्या होता है ना, बच्चों से कंपास से सर्कल्स ड्रॉ नहीं हो पाते हैं प्रॉपर।
तो हमने ये खुद इनोवेट किया है एक 9 वोल्ट ऑफ बैटरी और मोटर के साथ। अभी मैंने इसमें लाइट पेन यूज़ किया है जिससे आपको वर्किंग अच्छे से दिखे। तो मैंने जैसे ही इसका स्विच ऑन किया तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रोटेट होगा तो इसकी रोटेट होते ही सर्कल ड्रॉ होने लग जाएगा, जिससे कि आपको हैंड फ्री कंपास मिल जाएगा और आप सर्कल आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। Good morning, everyone. I am the sun. These are my planets. This is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Good morning, sir. I am APJ Abdul Kalam. I am aerospace scientist, right and post. I am missile man of India. I am 11th president of India. Thank you. This is a fishing game made in scratch by me. For playing it, we first of all we click on flag, and when the shark when fish, we got 1 point, and when shark eat this jellyfish, the game is over. Hello everyone, I am Puni Gang from class 3B presenting my model on the theories reduce, reuse, recycle. Reduce means choosing to things with care to reduce the amount of waste generated. Reuse involves the repeated use of items or part of an item. Recycling means the use of waste itself as resource. There are many benefits of applying the 3 R's, like first, prevents pollution, second, save energy, third, help us sustain the environment for future generation, fourth, save money. Thank you. Good morning, my name is Nikhil Kumar. I am from class 11 science, and this is my project on automatic rain sensor. So here is the sensor, the components, and the Arduino Uno, the breadboard, jumper wires, and I uses 2 servo motors inside this car. First I have to connect this from the battery. Now I will drop some water, and the sensor will detect the water and starts working. Good morning, myself Hitesh Kanchandani from class 11 science. This is a flood detector. This is a soil moisture sensor. It senses the moisture level of the water, and when it will sense the water, it will give the signals to the Arduino, and Arduino will beep the buzzer and turn on the LED. This is basically our project, Harappan civilization. This is the pottery system of that time, and this is where the washroom blocks. This is the houses of that time. This is a ziggurat. Ziggurat is basically a massive building with a beautiful terrace. This were the well, and mostly that time coins were used. Coins were made up of silver coins, which is images were punched on them. Hi, I am Shivam Kapoor. I have made this air purifier bot. So this bot contains of 2 units. First is the purification unit, and the second is the mobility unit. So the main uniqueness of this project is that it can move around by itself automatically. So first is the purification unit. The purification unit contains 3 layers of purification. These two layers are N95 mask filters, which is made from the N95 mask fabric, and this is the activated carbon filter. We have used activated carbon granules in this, which catches odors and smoke. These are 2 12-volt DC fans, and this is an ultrasonic center mounted on a servo motor to access the mobility part. Inside is the whole circuit, and this right here is the detection unit. This can detect the air quality of the surrounding area. This is the gas sensor, and this is the LCD to display the air quality. Thank you. Good morning, all of you. I am Khwaish. I have made this Sachi Stup. The Great Sachi Stup at Sachi is one of the oldest stone structures in India. It was made in 3rd century BC by King Ashoka after the War of Kalinga, where he adopted Buddhism. It is made in the state Madhya Pradesh in the city Sachi. This part is known as Anda. This is known as Harmika. This is Chhatri. This is Pradakshina. This is Pathas, and this is Vedika.
and this is known as Torana. Thank you. महेश जी, हम देख रहे हैं आप आज स्कूल में आए, प्रसन्न भी नज़र आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको आज बच्चों की प्रतिभा को देखकर। आज स्कूल के दिन वापस याद आ गए, और जिस हिसाब से आज बच्चों ने, छोटे से और बड़े बच्चों ने, हर सेक्शन ने, हर कैटेगरी, हर क्लास के बच्चों ने जो नवाचार करने की कोशिश की है, उसके लिए मैं सबसे पहले सब बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और जो स्कूल प्रबंधन है, कमेटी है, डायरेक्टर साहब हैं, सन्नी जी, इन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं इस स्कूल में आज तीसरी दफ़ा आया हूँ। जो मैंने ड्रामेटिक चेंज देखा है इसमें, मैं तीसरे फ्लोर पे आया हूँ, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे बेसमेंट हो, और चाहे थर्ड फ्लोर हो। यहाँ स्ट्रेंथ करीब 1400 है, बच्चों के स्ट्रेंथ 1400 है। तो इस 1400 की स्ट्रेंथ में मुझे लगा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा होता, उसका कोई न कोई प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ डायरेक्टर और मैनेजमेंट जो तो है सो है ही, वो तो अपना काम अपने तरीके से करते ही हैं, लेकिन जो मुझे सबसे जानकर जो ये जो भी कोई भी चीज़ जब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक वहाँ का स्टाफ ठीक नहीं हो, वहाँ के टीचर्स ठीक नहीं हो, वहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हो, वहाँ उनको जब तक जिस सब्जेक्ट के वो टीचर हैं उसको डेप्थ तक नहीं पढ़ाया जाए, जब तक वो लड़का अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मैंने जितने अभी प्रदर्शनी देखी, रैंडमली मैंने 2-3 जगह पूछ लिया, तो जो उन्होंने आंसर दिया उसको सुन करके मुझे खुशी हुई कि दे आर वेल ट्रेंड। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आज ऐसे इंस्टीट्यूशन में आया हूँ जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की तरफ वो जा रहे हैं। देखिए, मालविया कॉन्वेंट स्कूल के आज साइंस डे पे इन्होंने एनुअल एग्जीबिशन लगाया है। एक्चुअल में इस स्कूल की खासियत है कि जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको बहुत शिद्दत से करते हैं। आज मैंने देखा बच्चे इतनी मेहनत से सारा अपना एग्जीबिशन शो किया है। एक एक बच्चे की इंटेलिजेंस उनके एग्जीबिशन में नज़र आ रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सब ने अपनी पूरी, इसलिए ये एग्जीबिशन को देखें, इतना तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में देश आगे बढ़ रहा है तो ये स्कूल भी पीछे नहीं है। ये स्कूल भी कदम से कदम मिला के, जो मोदी जी का सपना है कि विज्ञान अगर देश में उन्नत होता है तो विज्ञान से बहुत सारी चीज़ों के रास्ते खुलते हैं। और इस स्कूल की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, बच्चों के भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत से किया है, वाकई में बहुत ही अच्छा। इसके लिए मैं सनी कपूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ कि हमारे इस एरिया में, मालविया नगर में, एक ऐसा स्कूल है जो केवल पढ़ाई पे ही नहीं, बाकी सभी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसका भी ध्यान दिया जाता है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान। अब इसमें इस नारे में थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हुए जय किसान जय जवान और जय विज्ञान। आज का जो समय है वो विज्ञान का समय है, और विज्ञान पे हमको सोचते हुए आगे बढ़ना है। जो बच्चे जिस ढंग से अभी काम कर रहे हैं, आदरणीय सुमन दीदी ने बता ही दिया है कि जिस ढंग से इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो तो सराहनीय है ही। तो मेरी शुभकामना है कि बच्चे आगे बढ़ें और इन्हीं में से कोई कलाम निकले, कोई होमी जहांगीर भाभा निकले और कोई सी रमन निकले, तो मेरी यही शुभकामना है। बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने इस विज्ञान दिवस पे ये चर्चा का जो लेके आए। तो सभी बच्चों को जो मालविया नगर कॉन्वेंट स्कूल में है उसको हमारे को देखने का सौभाग्य मिला। इतने बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों ने, इतने छोटे बच्चों ने, जिनको देख के हमारा दिल खुश हो गया कि हो सकता है वर्ल्ड में जैसे नाम चल रहा है भारत का, वैसे ये बच्चे साइंस में भी कुछ आविष्कार करके अपना नाम रोशन करेंगे। क्या खेती, क्या कलर, क्या मतलब मशीनरी, सभी पे इन्होंने अपना दिया है अभी। तो उसको देख के बड़ा दिल खुश है कि भविष्य की पौध हमारी भारत की बहुत ही मजबूत होने वाली है। दुनिया देखेगी इस चीज़ को, इस
विज्ञान दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैम हम देख रहे हैं आप काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, जब बच्चों को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि खुद का बचपन लौट आया है, कैसा एहसास है और क्या कुछ? सुमित, तुमने बिल्कुल सच कहा कि हमें वाकई ऐसा लग रहा है कि हमारा बचपन लौट आया। हम लोग भी जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो एक मन में बहुत बड़ा उत्साह हुआ करता था कि आज हमारी एग्जीबिशन लगेगी, प्रदर्शनी लगेगी, कि हम कुछ बनाएं। इन बच्चों को देखकर वाकई ये बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आज के हिसाब से जिस तरीके से कोरोना की बीमारी आई थी, उसको देखते हुए बच्चों ने ये ऑर्गेनिक, यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्म में ऑर्गेनिक दवाई के हिसाब से जो भी चीज़ें बनाई हैं बच्चों ने, बहुत अच्छा बनाया है। और मैं मालवीय कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर सर को और बच्चों को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि यहाँ से निकले हुए बच्चे अपना नाम रोशन करें साइंस के अंदर, क्योंकि आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और यहाँ के बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपना नाम रोशन जरूर करेंगे। देखिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष, आज नेशनल साइंस डे है, तो इस उपलक्ष्य के ऊपर हम लोग जो है साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। एंड दिस इज़ अराउंड आवर 8th साइंस एग्जीबिशन कंटिन्यूस इन ए रो। आप देख रहे हैं बच्चों ने कितनी मेहनत करी है। मोर देन 600 प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिस्प्लेड, अराउंड 600 to 700 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है और आप बच्चों की उत्सुकता देख सकते हैं, द वे दे आर प्रेजेंटिंग देम, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनकी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है। और हमारे बीच में आज कई गेस्ट भी इन सब का प्रोत्साहन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। सुमित काबरा जी जो रिनोन बिजनेसमैन हैं, हमारे पार्षद जो हैं इस एरिए के, जयश्री गर्ग जी हैं, गोविंद छिपा जी हैं, राम प्रसाद शर्मा जी हैं, हमारी आदरणीय सुमन शर्मा जी हैं। और इसके अलावा हमने कई डॉक्टर्स जो कि साइंस डे हैं आज इनवाइट किए हैं। डॉक्टर विवेक शर्मा हैं, डॉक्टर विमल सराधना जी हैं, और भी कई जानी मानी जो गणमान्य लोग हैं हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं टीचर्स कई दिनों से इस एग्जीबिशन के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे और मुझे लगता है ये प्रयास डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रयास है। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद, सभी टीम मेंबर्स को बहुत बधाई, और जो आगंतुक है, जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत आभार। थैंक यू। मैम, आपने साइंस डे पे आज एग्जीबिशन लगाई, काफ़ी अच्छा प्रयास था आप लोगों का, काफ़ी अच्छा रहा। कितनी मेहनत इसके पीछे थी और क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स के बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगे हैं इस साइंस डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मुझे ये लगता है साइंस डे ठीक है, एज अ रिमार्क ऑफ सीवी रमन इफ़ेक्ट के लिए हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, बट मुझे लगता है कि साइंटिफिक लीगेसी बच्चों को पता होनी चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत ऐसे साइंटिस्ट प्रोड्यूस हमारे इंडिया ने किए जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काफ़ी उनका योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट आगे बहुत काम आता है, आगे उनके फ्यूचर के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट हमेशा रहना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई, सबको बहुत अच्छा लगा। हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बहुत ज़्यादा एफर्ट से, महीने से दिन रात कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने।